Hello everyone, welcome to the GATE classes. Now just we are going to proceed the topic microprocessor 8085. अभी तक हम लोगों ने बेसिक पार्ट में कवर किया है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शन को कवर किया. उसके बाद वी हैव कवर्ड द अरिथमेटिक ग्रुप. अरिथमेटिक ग्रुप के कुछ टॉपिक्स अभी कवर हुए हैं, अभी बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह कुछ रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट वगैरह बाकी हैं. बट अब आगे मूव करने से पहले एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए न्यूमेरिकल से जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका फ्लैग्स के बारे में और अक्यूमुलेटर के बारे में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द रिटेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा? And the flags will be, flags means we will talk about the carry, parity, auxiliary carry, zero and sign flag. There are 5 flags in 8085 microprocessor. उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो स्टेटस रजिस्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे. तो चलिए MBI-A कैसा है? अगर हम लोग इसको प्रोग्रामिंग वाइज देखते हैं तो प्रोग्रामिंग वाइज MBI-A 59H अपकोड है, क्रॉस क्रॉस इसका अपकोड होगा, फिर अगले पे क्या आ जाएगा 59 जाएगा, फिर क्रॉस क्रॉस अपकोड जाएगा MBI-B का इंग्लिश लाइक वर्ड, फिर 37 जाएगा, फिर ADD-B का अपकोड जाएगा. अगर मान लो ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है एट द लोकेशन ऑफ 1000 हेक्साडेसिमल, नेक्स्ट पे क्या होगा 1001 पे 59 होगा, 1002 पे अपकोड होगा MBI-B का, 1003 पे 37 प्रेजेंट होगा, 1004H पे अपकोड प्रेजेंट होगा. ये तो जनरल है प्रोग्रामिंग जो आपकी मेमोरी में स्टोर होगी. जो मेमोरी में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर होगा उसके बारे में बात करते हैं. बट अब जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे आते हैं. ये पार्ट इसलिए बता दिया, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि इस एड्रेस के बाद अगला एड्रेस क्या होगा, इसलिए मैंने ये मेंशन किया. चलिए स्टार्ट करते हैं. MBI-A 59H, A has the content of 59. That is the first statement. 59 in the hexadecimal. B will have the content of B रजिस्टर में 37 मूव होके आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में 59 आ जाएगा, that is 37. Just for solving purpose, let's try to convert it into binary. 8 बिट में 59 0 0 1 0 1 that is 5, 9 is 1 0 0 1. That is the A content. 37 0 0 1 1 0 1 1 that is the content of B register. Now just going to perform instruction ADD-B. MBI-A में 59H आ जाएगा, MBI-B में 37H आ जाएगा. ADD-B, the content of B will be added with the accumulator and the result will be stored again in the accumulator. A has this content, B has this content, ADD-B is performed, the content will be added and the content and the result will be stored into the accumulator. Let's do 1 plus 1 is 2, 2 is written as in the binary 1 0, write the 0 here, carry will go further 1. 1 plus 1 2, 0 is here, carry is here. 1 plus 1 is 2, 0 is here, carry is here. 1 plus 1 is 2, 0 is here, carry is here. 1 plus 1 that is 3, 3 is written as 1 1. 1 is here, carry is here. 1 plus 1 is 2, that is 0, carry here. 1 plus 1 is 2, that is 0, carry here 1. Right? It will be the content. What will be the content? It will be the content 1 triple 1 0 0 1 and 4 times 0. That will be the content. Now the answer. This 8 bit will be the result. This 8 bit will be the result. This 8 bit will be the result. And the result will be A. A stands for accumulator. It is written as 9 and this one is 0. इसको कंटेंट को 4 बिट को 0 बोलेंगे और इसको 8 और 9 बोलेंगे. Accumulator content is 90H. पहला आंसर आ गया. The content of the accumulator will be 90H. The content of accumulator will be 90H. Now look on the flags. Status of all the flags will be marked by the result. Carry flag. We know that there is no carry and around कोई carry नहीं है. D7 bit से this bit is 0. D7 bit से कोई carry नहीं है तो carry flag is 0. What about parity flag? 8 bit का जो result है, in the 8 bit result there are even number of ones are present. If even number of ones are present in the 8 bit result, then parity flag will be 1. What about the auxiliary carry flag?
फ्रॉम द लोअर निबल, छोटे वाले ग्रुप से 4 बिट के अगर बड़े वाले ग्रुप में कैरी जाता है, डेफिनेटली कैरी जा रहा है, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। मैंने बोला था D3 बिट से D4 बिट में अगर कैरी जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा। कैरी पैरिटी ऑक्सिलरी 0 फ्लैग, रिजल्ट 0 नहीं है, अगर रिजल्ट 0 होता 8 बिट का तो 0 फ्लैग 1 हो जाता है, अदरवाइज तो 0 स्टेट में ही रहेगा। D7 बिट साइन बताती है, साइन इज 1, दैट इज द स्टेटस कैरी पैरिटी ऑक्सिलरी कैरी 0 एंड साइन। ये एक न्यूमेरिकल था जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी प्रोग्रामिंग पार्ट शुरू ही हो रही है तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेके चले। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, कैरी फ्लैग इज 0, पैरिटी फ्लैग इज 1, ऑक्सिलरी कैरी इज 1, 0 फ्लैग इज आपका आ रहा है 0, साइन फ्लैग इज 1, दैट इज द स्टेटस, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट न्यूमेरिकल, राइट। अच्छा, MBI A, MBI B, SUB B, just we are going to do the things. MBI A, first statement is your A has the content of 59. A has the content of 59, right? B has the content of 37. Subtraction of B. When this instruction is performed, accumulator has the content of accumulator minus B register. और हम लोग डिजिटल में बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ और नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। अगर ये माइनस लगा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन, इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन, इट्स अ टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। टूस कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड कर देना ऑपरेशन, जनरली हम लोगों को ये परफॉर्म करना है। तो पहले हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट लेना सीखते हैं कि कैसे टूस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, फिर आगे फर्दर हम लोग मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं इधर प्रोसीड करता हूं। माइनस बी मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म SUB B. SUB B means A has the content of A minus B. It is written as A plus in bracket minus B. Right, टूस कॉम्प्लीमेंट B रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको लेके जनरली हमको ऐड कर देना है, फिर रिजल्ट वगैरह लिखते हैं। A has the content of 59. 59 is 1001, sorry 0101, 9 is 1001, and B has the content of 37, that is the content of B register. बट A को एज इट इज रखना है, A को एज इट इज रखना है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या लेना है? टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, देन 1 ऐड कर दें। दूसरा तरीका है कि राइट साइड से मूवमेंट करते हैं, जब तक पहला 1 नहीं आता है रिजल्ट को कॉपी करते रहते हैं, कॉपी कर लिया, राइट साइड से मूवमेंट करते हुए आते रहते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट कभी भी निकालना है, जब तक पहला 1 नहीं आएगा तब तक जो भी कंटेंट रहेगा उसको कॉपी करते रहेंगे, उसके बाद जितने 0 या 1 है उनका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 1। ये आपका कंटेंट हो गया बी रजिस्टर का टूस कॉम्प्लीमेंट। अब हमको ऐड करना है, वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन। अब इस वाले कंटेंट को हमको हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। अब यहाँ प्लस लग गया। 1 + 1 is 2, दैट इज 0, 1 आ जाएगा, ये 0, 1 + 1 is 2, 0 carries here, 1 + 1 is 2, that is 0 carries here, 1 + 1 is 2, 0 that is carry here, 1 + 1 is 2, that is 0 carries here. Here you have the result. ये आपका रिजल्ट आ गया, ये जनरल रिजल्ट आपका आ गया 8085 माइक्रो प्रोसेसर का 8 बिट का रिजल्ट आया। नाउ मूव ऑन द फ्लैग्स एंड कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हैज द कंटेंट ऑफ 0010, 0010, दैट इज 22H। एज आई नो दैट, हमको पता भी है कि अगर 59 में से 37 हटाया जाएगा, जनरल अभी जनरल बात कर रहे हैं बाइनरी में, वैसा ही हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिजिटल में मैंने बात कर रखा है। तो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट 22 आएगा। क्या आएगा? 22 ही आएगा। वो 22 आ भी रहा है बेटा।
नाउ मूव ऑन द कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग एंड जीरो फ्लैग. मूव ऑन द रिजल्ट्स. नाउ लुक ऑन द कैरी फ्लैग स्टेटस. पहले मूव कर जाते हैं पैरिटी फ्लैग. 8 बिट का जो रिजल्ट है उस पर कंसंट्रेट करें. 8 बिट के रिजल्ट में अगर इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा, जो कि है. दो जगह पे 1 आ रहा है मीन्स इवन नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट. इन केस ऑफ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या करेंगे, D3 बिट से D4 बिट में क्या आ रहा है बेटा, D3 से D4 में कैरी आ रहा है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी 1. साइन फ्लैग, D7 बिट आपका साइन का इंफॉर्मेशन देगी, साइन इज 0. जीरो फ्लैग 8 बिट का जो रिजल्ट है, 8 बिट रिजल्ट इज नॉट कंप्लीटली 0, तो जीरो फ्लैग का स्टेटस क्या रहेगा, जीरो फ्लैग इज 0. नाउ मूव ऑन द कैरी फ्लैग. अगर टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन कर रहे हैं मीन्स हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, और अगर आपका एंड अराउंड कैरी आ जाता है, क्या आ जाता है, एंड अराउंड कैरी आ जाता है, तो उस एंड अराउंड कैरी को मतलब जब कैरी फ्लैग लिखोगे तो उसको क्या कर दोगे आप, कॉम्प्लीमेंट लेके आंसर को मार्क करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है. अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स लिखेंगे. ये 1 आया, कैरी फ्लैग लिखना होगा तो जो भी स्टेटस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया. कैरी 1 है तो कैरी का कॉम्प्लीमेंट 0. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो हम लोगों ने क्या किया, मार्क कर लिया स्टेटस, कैरी फ्लैग इज 0, पैरिटी फ्लैग आपका क्या आ रहा है 1, ऑक्सिलरी कैरी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, साइन जीरो फ्लैग 0 आ रहा है, साइन फ्लैग आपका 0 आ रहा है. तो हम लोगों ने क्या किया, दो न्यूमेरिकल्स किया. दो न्यूमेरिकल्स की मदद से हम लोगों ने फ्लैग्स का स्टेटस मार्क किया, और फ्लैग्स के स्टेटस के साथ साथ हम लोगों ने मार्क किया कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा. हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और रजिस्टर्स के बारे में. इंस्ट्रक्शन के बारे में जस्ट मूविंग. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, INR और DCR. जस्ट वी हैव डन इंस्ट्रक्शन, ये अरिथमेटिक ग्रुप का ही है. INR दैट इज वन इंस्ट्रक्शन, अनदर वन इज योर DCR. एक ही टाइप के होते हैं लगभग. अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो अब रजिस्टर का जो कंटेंट होगा, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विल बी इंक्रीमेंट बाय 1 यूनिट. कितना, हाउ मच, 1 यूनिट. इफ इट इज रिटन INR B, if it is written INR B, the content of B register will be incremented by 1 unit, right? The content of B register will be incremented by 1 unit. If DCR R is written, the content of the register will be decremented by 1 unit, will be decremented by 1 unit. If INR, example, if INR C is written, the content of C register will be decremented by 1 unit. ये सेम टाइप के ग्रुप के हैं, INR R और DCR R. INR B या DCR B कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं. तो क्या क्या, ये तो हो गया थोड़ा सा ऑपरेशन कैसे होगा, कितने बाइट का है, इससे बात करते हैं. INR R, इंग्लिश लाइक वर्ड इज प्रेजेंट, इसका आप कोड होगा. कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इट इज ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. किसकी बात हो रही है, रजिस्टर की बात हो रही है. एड्रेसिंग मोड इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. एड्रेसिंग मोड इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दैट इज योर अपकोड फेच. ऑपकोड ही फेच होगा हमेशा, हर क्वेश्चन में ऑपकोड फेच या हर एक इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड फेच हो रहा है. एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कितनी मशीन साइकिल लगेंगी, ओनली 1 मशीन साइकिल. हाउ मेनी T स्टेट, 4 T स्टेट. व्हाट अबाउट द फ्लैग, दैट इज इंपॉर्टेंट. INR R और DCR R इंस्ट्रक्शन जब भी परफॉर्म होता है सारे फ्लैग पे इफेक्ट होता है कैरी फ्लैग को छोड़ के. ऑल फ्लैग्स न्यूमेरिकल करते हैं अभी थोड़ी देर में. ऑल फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी, ये कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स किए और 2 इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है. अगर आपको सही लग रहा हो तो अगला लेक्चर जो भी जिनका छूटा हो वो आप लेक्चर देख भी सकते हैं. अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ नए इंस्ट्रक्शन के बारे में और कुछ नए न्यूमेरिकल्स के बारे में.